یہاں سے ہدایات دیے ہیں کہ وہ اپنے اپنے صوبوں میں ان تمام مکتب فکر کے لوگوں سے رابطہ رکھیں اور اس تحریک کا حصہ بنانے کے لیے ان سے رابطہ رکھیں، کیونکہ ان لوگوں کو سب سے زیادہ مشکلات ہیں۔ تو اس بنیاد پہ ہم یہی کہیں گے کہ چونکہ حکومت نے 13 تاریخ کے لیے کافی روڑے اٹکانے کی کوشش کی ہے، وہاں پہ یعنی گراؤنڈ کو انہوں نے ڈیم بنا دیا ہے، سیلاب یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہاں پہ تالاب بن گیا ہے، اور ہم اس یعنی جو انہوں نے طریقہ کار اپنایا ہے کہ ہم تو اجازت یعنی دیں گے، ہم روکیں گے نہیں، لیکن تمام اقدامات روکنے کے لیے کیے جا رہے ہیں۔ گرفتاریاں شروع کر دی گئی ہیں، آپ یعنی جو کرسیوں والے ہیں ان پہ پابندیاں لگا دی گئی ہیں، اور لاؤڈ سپیکر کے حوالے سے ڈی جی بٹ کے تو آپ پہلے ہی سن چکے ہیں، ان کو جس بونڈے طریقے سے گرفتار کیا گیا ہے، شرمناک طریقے سے گرفتار کیا گیا ہے۔ تو یہ طریقہ کار جو انہوں نے اپنایا ہے صرف اس لیے کہ وہ ہمیں ڈرائیں اور یہ کہیں کہ کبھی کرونا کا بہانہ بناتے ہیں، تو ملتان کا حشر تو ان لوگوں نے دیکھ لیا ہے۔ پابندیوں کے باوجود ہمارا سب سے کامیاب ترین پروگرام وہاں پہ ہوا، حکومت ناکام ہوئی اور اپوزیشن کامیاب ہوئی۔ انشاءاللہ لاہور میں ہم ان کو شکست فاش دیں گے۔ یہ موجودہ حکومت تمام یعنی جتنے بھی ترکیبیں آزمائیں یہ فیل ہوگی، اور ہماری یہ تحریک جو ہے، ہماری جو جلسہ عام ہے وہ کامیاب ترین جلسہ ہوگا۔ اور میں یہ ضرور کہوں کہ جو یہ طریقہ کار اپنا رہے ہیں یہ ڈر کے مارے اپنا رہے ہیں، اب رابطے بھی کر رہے ہیں، کہہ بھی رہے ہیں کہ مذاکرات کے لیے میں تیار ہوں۔ تم نے تو یہی تک ہماری یعنی اتنا مذاق اڑایا کہ آپ نے کہا کہ یہ تو کرپٹ لوگوں سے تو میں اسمبلی میں بھی بیٹھنا نہیں چاہتا، تو کیا وہ لوگ بھول گئے؟ تو یہ ڈر کے مارے اب تم جھک کے سب کچھ کر رہے ہو۔ لیکن چونکہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے کل اس پہ بات کی ہے، میں اس پہ مزید بات نہیں کروں گا، لیکن حکومت کے حوالے سے کہ جو بھی یہ سخت سے سخت اقدام اٹھائیں گے ہم اس کا مقابلہ بھی کریں گے اور ہم اس کو ناکام بھی بنائیں گے، اور تب تک یعنی ہم یہ جاری رکھیں گے کہ اس حکومت کو ختم نہ کریں۔ اور ہماری سیدھی سادی یعنی ایک پروگرام جو پہلے سے آ رہا ہے اس کو بار بار ہم اس لیے دہرا رہے ہیں کہ کوئی غلط فہمی کا شکار نہ ہو کہ یہ داندلی کی پیداوار حکومت ہے۔ ہم نہ کبھی اس کو پہلے ہم نے مانا نہ اب مانتے ہیں، اس کا خاتمہ لازمی ہے، اور اس کے بعد ری الیکشن وہ بھی شفاف، فری اینڈ فیئر ہو اور مداخلت سے پاک ہو، اور جو بھی جیتے اس کے حوالے کیا جائے۔ اور آئین کی بالادستی سب سے بڑی بات ہے، اور پھر پارلیمنٹ کی سپرمیسی اس کو قائم رکھنا ہے، اور تمام اداروں کو آئین کے دائرہ کار میں رہتے ہوئے اپنا کام کرنا ہے۔ کسی کو کسی دوسرے ادارے میں مداخلت کی نہ اجازت ہے نہ ضرورت ہے، آئین کی بالادستی ہم چاہتے ہیں۔ یہی یعنی ہمارا شیڈول جو ہے وہ طے ہو چکا ہے۔ ایک بار پھر میں یہ بات بتا دوں، اس کا اعلان 13 تاریخ کو ہوگا، اور اس کے بعد ہم تمام مکتب فکر کے لوگوں کو خود بھی ہم رابطہ رکھیں گے مرکز کے سطح پہ، لیکن صوبوں کی سطح پہ ہمارے تمام پی ڈی ایم کے پارٹیوں کے قائدین ان سے رابطہ رکھیں گے، اور ان سے یعنی جس طریقے سے بھی یعنی وہ پروگرام بنا سکتے ہیں وہ پروگرام بنا دیں، اور اس پروگرام کے تحت ہم یعنی لانگ مارچ کے لیے فضا بنا کے اسلام آباد کی طرف مہینے کے آخر میں ایک ڈیٹ پھر ہم اعلان کریں گے، اور جنوری کے مہینے کے آخری ہفتے میں ہم اعلان کریں گے، اور تمام پاکستان کے لوگ جتنی بھی ہم یہ تمام ایکٹیویٹیز کریں تو اس کے بعد ہم پھر اسلام آباد کی طرف رخ کریں گے، اور وہ ہمارا آخری اس طریقے سے اقدام ہوگا کہ ہر صورت میں اس حکومت کا خاتمہ کریں گے، اور اسی میں ڈیسائیڈ کریں گے کہ اب پیک پہ سب کچھ پہنچ چکا ہے، استعفے کا وقت آ ہی پہنچا ہے، تو ہمارے اکابرین فیصلہ کریں گے، اور اسی کے دوران پھر ہم استعفے بھی ان کو دے دیں گے، اور استعفے سے نہیں دیں گے پھر حکومت بھی نہیں چلے گی۔ یہ جس طریقے سے بات کر رہے، تم ضمنی الیکشن نہیں کرا سکتے، تم کہتے ہو کہ میں یعنی وہ الیکشن کرا دوں گا جس میں 100 سے اوپر کے لوگ یعنی 150 کے برابر لوگ استعفیٰ دیں گے۔ ابھی جو مرے ہیں ان علاقوں میں تم ضمنی الیکشن نہیں کرا سکتے،
तुम लोकल बॉडीज के इलेक्शन नहीं करा सकते, तुमने पाकिस्तान को मजाक बना के रख दिया है। लिहाजा ये तरीक़ाकार इमरान जिस तरीके से चल रहा है, अगर इनको मजीद चलने दिया गया तो ये पाकिस्तान की तबाही होगी। हम किसी तौर पाकिस्तान की तबाही होने नहीं देंगे। महंगाई हर कीमत पे रोकनी है, यानी इस तरीके से अगर इमरान होगा तो महंगाई नहीं रुकेगी। आज भी उसने बड़ा लेक्चर दिया है, और इतना लेक्चर दिया है कि सुनने वाले सो गए, और वो देते रहे और देखने वाले थक गए। काश हमें भी ऐसा मौका मिल जाए कि हम भी, ये तो पुराना आदि है, ये तो अपोजिशन में था तो तब भी 24 घंटे इसको कवरेज मिलती थी। इसमें हमने मीडिया को भी डाला है कि हम मीडिया के साथियों से भी राबिता रखेंगे। इस तहरीक के हवाले से मीडिया के लोगों को इत्मीनान में लेंगे कि वो हमें इस हवाले से सपोर्ट करें कि पाकिस्तान की बका के लिए हमें सपोर्ट करे, जमहूरियत की बका के लिए हमें सपोर्ट करे, और जो पाबंदियां मीडिया पे लगी हैं उसके लिए हमें सपोर्ट करे। मीडिया की इस वक्त हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, और हम आपको इत्मीनान में लेंगे भी, लेकिन ख़ुद भी आप समझते हैं कि ये जंग ऐसा जंग है कि आप हमारा साथ देंगे तो आपका भी भला होगा, इस कौम का भी भला होगा। ये अब बिल्कुल ऐसा ही है, चूँकि चंद आपके सवालात का जवाब अगर मैं दूं तो फिर वो 13 तारीख की अहमियत वो नहीं रहेगी, लेकिन बिल्कुल ऐसा ही है कि हम कन्वेंशन की सतह पे भी करेंगे। तमाम मकतब फ़िक्र के लोगों की अलग अलग कन्वेंशन का भी हमारा इरादा है, और डिवीज़नों की सतह पे भी हमारा इरादा है, और फिर तमाम सूबों को एक्टिवेट रखने के लिए हमने वो सब कुछ इस तरीके से तकसीम किया हुआ है कि इस 1.5 महीने में तमाम यानी पाकिस्तान के यानी सूबों से हम राबिता भी रख सकें, उनको यानी गरमा भी सकें, और जो यानी लॉन्ग मार्च की तरफ हम बढ़ते जाएं तो टेम्पो मज़ीद बढ़ती जाएगी। तो उस तरीक़ेकार को हमने अपनाया है। तो बिल्कुल मीनार पाकिस्तान का जलसा बिल्कुल अटल है। मैंने ये कहा, इन्होंने हमें मुल्तान में करने नहीं दिया, हमने किया। इसी तरीके से लाहौर में मीनार पाकिस्तान पे करेंगे। अगर नहीं दिया मीनार पाकिस्तान पे तो मीनार पाकिस्तान तो इनका अलग तो नहीं है ना, ये तो फिर ऐसा है कि दुश्मनी पे उतर आए हैं। जब हम पुरअमन जलसा कर रहे हैं, हम पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं, अभी से इन्होंने सैलाब बना दिया। हम तो पानी में खड़े होकर ये जलसा करेंगे, लेकिन रास्ते रोकेंगे तो रास्तों को खोलेंगे और वहाँ पे हम जलसा करेंगे। लेकिन इमरान तो वो दिन भी याद रखे ना, कराची से आया, डी चौक से आया, किसी ने पूल तक नहीं फेंका, हर एक ने इस्तकबाल किया, इनको सपोर्ट किया, और यहाँ पे फिर खाली कंटेनर पे होके लोग नहीं थे और टीवी कह रहे थे कि लाखों लोग हैं, खाली कुर्सी को लाखों लोग, और पराए जलसों को उसके सामने कवरेज में तैयार कर लेते थे। मैं एक वाक़या बयान करता हूँ कि मैं खुद इंफॉर्मेशन मिनिस्टर था खैबर पुख्तनख्वा का। इसने कहा मैं वज़ीरिस्तान जाऊँगा और ये वहाँ पे यानी एहतजाज करूँगा। तो जब ये पहुँचा DI खान, तो कमिश्नर ने मुझसे राबिता किया कि इमरान खान कह रहा है, रिकॉर्ड पे कह रहा हूँ, इमरान खान कह रहे कि मुझे गिरफ्तार करो, आगे जाना मुश्किल है। कमिश्नर ने कहा, मैं बिल्कुल नेटो सप्लाई की जो बात की, और उसने वहाँ पे कहा कि मैं एहतजाज करूँगा और इसके ख़िलाफ़, ड्रोन अटैक के ख़िलाफ़। तो हमने कहा कि बिल्कुल हमारी हुकूमत है, हम आपको सपोर्ट करते। कमिश्नर ने कहा गिरफ्तार करूँ, मैंने कहा गिरफ्तार नहीं करना, इनको हिफाजत से वज़ीरिस्तान तक पहुँचाना, कि पता तो चले। इसको पता भी नहीं था वज़ीरिस्तान शिकार के लिए तो गया है, एहतजाज के लिए कभी नहीं गया। ये टैंक में था और लोगों से कह रहा था मैं वज़ीरिस्तान में हूँ। खुदा की कसम टैंक में खड़े हो के उसने कहा वज़ीरिस्तान में हूँ। इब्तिदा से झूठ बोलने इसका आदत है, लेकिन अब ये चुप नहीं सकेगा। न कोरोना के पीछे चुप सकता है, न इमरानी कोरोना हमें मंजूर है, न सियासी कोरोना मंजूर है। खुदाई कोरोना पे हम बिल्कुल लोगों से कहते हैं कि मास्क पहने, एहतियात करें, सैनिटाइज़र की हम यानी सहूलत देंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन रुकेंगे नहीं।
इमरान को कोरोना के पीछे छुपने नहीं देंगे और वही आज यानी हम उसी तरीके से जोश और जज्बे से जाएंगे कि इस हुकूमत का खात्मा करें। एक सेकंड, एक हिकमत अमली क्या है? हम तो तैयार हैं। ये जेल किसके लिए है? हम जेल से डरे? हम तो कानूनी और आईनी रास्ते अपनाएंगे। कानूनी और आईनी रास्ते जो गिरफ्तार होते हैं उनके लिए भी हैं, वो अदालत भी जा सकते हैं, हम केस भी कंटेस्ट कर सकते हैं। लेकिन ये बात ज़रूर है कि हम यानी गिरफ्तारियों से डरने वाले नहीं हैं। हम इमरान खान की तरह तो नहीं है कि एक दिन नहीं गुजारा वज़ीर आज़म बन गए। हमने तो पाकिस्तान पे तो क्या, हमें खैबर पुख्तनख्वा के एक जेल भी ऐसा नहीं है जिसमें हमने रात या दिन नहीं गुजारे या महीने साल नहीं गुजारे। जेलों से डर नहीं है, मार से भी डर नहीं है। और ये बात सच है कि जमहूरियत को बहाल करना है, मौजूदा हुकूमत का खात्मा करना है। और इंशाअल्लाह 13 तारीख तक इंतज़ार करें कि तमाम शेड्यूल लाहौर में ऐलान हो। और पहिया ऐसा है कि एतजाज़ हसन साहब सीनियर बंदे हैं, पीपल्स पार्टी के यानी काबिल एहतराम शख्सियत हैं। बिलावल साहब ने उसके हवाले से बड़ा अच्छा जवाब आज आपको दिया हुआ है। उन्होंने कहा कि सेंट्रल कमेटी का इजलास बुलाएंगे, उसमें वो होंगे और जो फैसला पार्टी का होगा वो भी तस्लीम करेगा, मैं भी तस्लीम करूँगा। देखिए मैं जवाब देता हूँ उसका। देखें, मैं वज़ीर दाखिला रहा हूँ। जब थ्रेट अलर्ट होता है तो ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी होती है कि अपने शहरियों को हिफाजत फराहम करे। हमारे दौर में जब दहशत गर्दी से हम लड़ रहे थे, इससे ज़्यादा संगीन थ्रेट अलर्ट आते थे इमरान खान के हर जलसे में, लेकिन हुकूमत उसके लिए तमाम हिफाजती इक़दामात उठाती थी, जिसका नतीजा ये है कि आपने देखा 5 साल इमरान खान ने मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ के साथ अपनी तमाम सियासी सरगर्मियाँ जारी रखीं। अगर कोई थ्रेट अलर्ट है तो इसकी ज़िम्मेदार अपोजिशन नहीं है, इसकी ज़िम्मेदारी हुकूमत पे आयद होती है कि हुकूमत उस थ्रेट अलर्ट के तदारुक के लिए जो मुनासिब हिफाजती और इंतज़ामी बंदोबस्त है वो यकीनी बनाए। थ्रेट अलर्ट की बात मैं करूं, थ्रेट अलर्ट पेशावर में भी था, थ्रेट अलर्ट जो था वो क्वेटा में भी था। और अगर आपको हम बताएं कि हम सबको अलग अलग है, हमें दिए भी जा चुके हैं, बाई नेम दिए जा चुके हैं। लेकिन सनाउल्लाह साहब की आप बात कर रहे हैं, वो सबसे पहले जाएगा, उसका बाल भी कोई बीगा नहीं कर सकता। ये अपने मर्जी के थ्रेट अलर्ट ये खुद इसी तरीके से जारी करते हैं। जलसा होगा तो फिर कुछ थ्रेट अलर्ट नहीं होगा। ने आज फिर दावत दिया नेशनल डायलॉग की। उन्होंने ये कहा है कि पार्लियामेंट ही बेहतरीन डायलॉग की जगह है, और साथ ही उन्होंने ये कहा कि अगर आपको हमें हटाना है तो आईनी रास्ता अख्तियार करें, तहरीक एतमाद लेकर पार्लियामेंट। एक बात इस पे कल मौलाना साहब ने 2 टोक अल्फाज में बात की है, तो हम ऐसी बात करना नहीं चाहते कि कंट्राडिक्ट हो। इसके बाद जो फैसला होगा तो आपको इत्तला दी जाएगी। बड़ी मेहरबानी, खुदा खुश रहे, बड़ी मेहरबानी। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।